ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیز ٹیلی ویژن کو ابھی سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد، لندن سے اپنے ولاگ لندن ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، رات گئے تک بڑی اہم خبریں پاکستان سے آ رہی تھی۔ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کیا جا رہا ہے کیونکہ پنجاب کی پولیس نے اپنی روایتی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی سیکیورٹی واپس لے لی ہے، جس سے ان کی زندگی کو شدید خطرات پیدا ہو گئے ہیں اور ان کو بنی گالہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ اہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ رات گئے عمران خان نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد اہم فیصلہ کیا کہ ان کو بنی گالہ منتقل ہو جانا چاہیے اور وہاں پر ان کی سیکیورٹی کے لیے کس قسم کے کمرے تیار کیے جا رہے ہیں، بلٹ پروف کمرے جہاں گولی کی دسترس نہ ہو، اس طرح سے سیکیورٹی کا احوال جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ آج کی سب سے اہم خبر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی ویڈیو آج وائرل ہوئی ہے کہ جس کے بارے میں آپ سن کر دھنگ رہ جائیں گے۔ مریم صفدر اعوان کی نئی اور تازہ ترین ویڈیو، اور خالہ، آنٹی، نانی کیا کیا اس کو نام دیں کہ جو ہر وقت عمران خان کا نام جاپتی رہتی ہے، اس کے اعصاب پر عمران خان سوار ہے، اس کی ایک نئی تازہ فریش ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے۔ جہاز میں کیا ہوا اور لوگوں نے کس طرح سے نانی کو رسپانس دیا، یہ ایک بڑی خبر ہے اور تازہ ترین ویڈیو آج آپ کی خدمت میں اپنے ولاگ میں پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لال حویلی کے تالے توڑ کر لال حویلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، اپنی ہی جائیداد پر قبضہ نہیں آپ اس کو کہہ سکتے بلکہ اپنے حق کو وصول کر لیا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کل لندن میں کیا ہو رہا ہے، بیمار شریف کی کیا حالت ہے، چمچے کڑچھے چونکہ بی بی کے ساتھ پاکستان چلے گئے ہیں، لہٰذا پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور کون کون جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے اور اس وقت مریم صفدر اعوان کی چاپلوسی میں مشغول ہے، ان کے ناموں سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین، یہ ساری اہم خبریں، سارے اہم واقعات، سارے اہم حقائق آپ تک لاتے رہیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوستوں کو شیئر کریں اور ویڈیو پر کومنٹس بھی دینا مت بھولیے گا، کیونکہ او ٹی وی اوورسیز ٹیلی ویژن کا پروگرام لندن ٹاک آپ کی آواز ہے، عمران خان کی آواز اور پاکستان کی آواز۔ تو ناظرین، سب سے پہلے سب سے اہم خبر کی طرف چلتے ہیں، وہی خبر جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کی سیکیورٹی بلال صدیق کمیانہ اور اس کے ساتھ ساتھ نئے آنے والے انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس نے واپس لے لی، کیونکہ جس قسم کی نگران حکومت آئی ہے اس سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ عمران خان کی جان کے دشمن ہیں۔ انہوں نے عمران خان کی سیکیورٹی زمان پارک سے ہٹا لی، جس پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کو فوری طور پر بنی گالہ منتقل کر دیا جائے۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب جو نئے انسپیکٹر جنرل ہیں ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ انتہائی فرض شناس اور ایماندار افسر ہیں، لیکن جب نگران حکومتوں کے سائے تلے ایسا افسر تعینات ہونے پر رضامندی ظاہر کر دے تو یقیناً کچھ نہ کچھ مکمکا کر کے ہی تعیناتی لی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں عمران خان کی سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی۔ ایک طرف تو پاکستان کی عدالتوں کے مفروروں کی بیٹیوں کو اس قدر تحفظ فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ سیکیورٹی کی گاڑیوں کے جلوس کی صورت میں گھر سے نکلتے اور گھر واپس آتے ہیں، کیونکہ حالانکہ ان کو اپنی جان کا بھی خطرہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔
आइए सबसे पहले आज मरियम की जो वीडियो है जो वायरल हुई उसके बारे में बात करते हैं और आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि आप भी वीडियो देखकर एक मर्तबा जरूर हैरान परेशान रह जाएंगे, बल्कि आप जिस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ, पाकिस्तान के तोड़ने वालों के साथ अवाम क्या सलूक करती है। आइए इस वीडियो में मुलाजा फरमाएं। ये वो वीडियो है जब मरियम सफदरजमान अपने चमचों कड़छों के हमरा लंदन से पाकिस्तान आ रही थी बरास्ता दुबई, तो अवाम ने उनके साथ क्या सलूक किया। जब जहाज में उनके चमचों ने वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लगाने शुरू किए तो पहले तो मरियम सफदरजमान ने उनको वजीर आजम नवाज शरीफ का नारा लगाने से मना कर दिया और फिर अवाम ने क्या सलूक किया। आइए इस वीडियो में मुलाजा फरमाएं। मरियम के पापा शोर है, मरियम के पापा शोर है, मरियम के पापा शोर है, बबलू के पापा शोर है, बबलू के पापा शोर है। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये वीडियो कैसी वीडियो है, क्या गजब कहानी है, क्या अजब स्टोरी है कि लोगों ने जब इमरान खान के मतवालों ने, चाहने वालों ने जब देखा कि जहाज के अंदर वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लगाए जा रहे हैं तो उन्होंने सारा टब्बर चोर है, मरियम के पापा चोर है के नारे लगाने शुरू कर। जहां जाते हैं चोर है चोर। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैं आज लंदन गया, यानी सेंट्रल लंदन जहां पर इनका घर है, और मैं मार्बल आर्च का इलाका, जो दोस्त जानते हैं उनको पता होगा, वहां से मैं गुजरा। मैं देखता रहा कि शायद कहीं इनमें से कोई बाहर नजर आ जाए, और फिर मैं ये भी देखता रहा कि कहीं से चोर चोर की आवाजें तो नहीं आ रही। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मैं वो आवाजें सुनने से महरूम रहा, क्योंकि सर्दी काफी थी और शायद ये अपने गर्म और नाजुक जो है वो लहाफों में दुबके हुए जो है वो पाकिस्तान की अवाम का मजाक उड़ा रहे थे। तो नाज़रीन, इस तरह से इनके साथ सलूक करती है अवाम। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पेशावर बम धमाका, पेशावर में जो धमाका हुआ है जिसमें 159 अफराद के करीब लोग मुबैना तौर पर शहीद हो गए, इससे ज्यादा तादाद हो सकती है, लेकिन सरकारी तौर पर 159 अफराद और सैकड़ों अफराद के जख्मी होने की इतलात है। कहा यह जा रहा है कि ये कोई ऐसा शख्स था जो पुलिस लाइन में मौजूद था और पुलिस के किसी अफसर या किसी ऐसे बंदे के साथ रह रहा था कि जिसको खुद भी पता नहीं था कि ये कोई धमाका करने वाला खुदकश बमबार भी हो सकता है, और पुलिस लाइन के अंदर से ही ऐसा बंदा निकला जिसने ये धमाका किया, जिसके नतीजे में ये बड़ी जो है कीमती जाने वो उनका नुकसान हुआ। हम इस मौके पर पुलिस के साथ, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के साथ और फौज के जवानों के साथ, पाकिस्तान की फौज और अदारों के साथ, खास तौर पर अदारों के साथ जो है हम इस वक्त इज़हार हमदर्दी करते हैं और इस बात पर भी अफसोस का इजहार करते हैं कि इतनी कीमती जाने वतन की हिफाजत में चली गई। अल्लाह ताला तमाम शहदा को गरीक़े रहमत करे, उनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। नाज़रीन, एक और बड़ी अफसोसनाक खबर है, वो ये है कि लंदन में हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, इंतहाई मोहब्बत करने वाले सहाफ़ती दुनिया के दरख्शां सितारे और पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के सदर, साबका सदर, और अभी सदर ही थे बस, लेकिन वो साबका सदर मुबीन चौधरी, बड़ा नाम, बड़ी शख्सियत, बड़ा मोहब्बत करने वाला शख्स, कल रात को यानी जो परसों रात को यानी जो इतवार की शाम है, प्रेस क्लब के इंतखाबात थे, वहां से तमाम दोस्तों को मिलकर गए तो उनको दिल का दौरा पड़ गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। हम अहले खाना के साथ उनके गम में बराबर के शरीक है और अपने इस प्यारे, कीमती और बेहतरीन दोस्त के जो है वो अल्लाह के पास चले जाने पर इंतहाई गमज़दा है, लेकिन हुक्म इलाही को कौन टाल सकता है। अल्लाह ताला मुबीन चौधरी को गरीक़े रहमत करे, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, दूसरी जो मैं आपको बात बता रहा था कि मियाँ बीमार शरीफ की क्या हालत है लंदन में। मियाँ बीमार शरीफ आजकल बाहर नहीं निकलते क्योंकि उनके साथ सिक्योरिटी वाले और वो जो चमचे जो हट्टो बच्चों की आवाजें लगाते थे वो मौजूद नहीं होते। अब डरते हैं कि अकेला बाहर निकला, बच्चों के साथ, बेटों डब्लू बबलू के साथ बाहर निकला तो लोग चोर चोर की आवाजें लगाएंगे और फिर इनको हर गली के कोने पर शायान अली नजर आता है और रात को ख्वाबों में भी इनको शायान अली आता है, इसलिए बाहर नहीं निकल रहे। और यहाँ पर जो है वो उनके जो वो जुबैर गुल और वो जो सहाफी भी, जो इनके मॉर्गेज रिपोर्टर,
खूबसूरत इंसान जो है वो इस वक्त दौरा पाकिस्तान पर है, और दूसरे भी जो इनके साथी जो ऐसे रिपोर्टर जो इनके कहने पर जो सवालात किया करते थे वो सब पाकिस्तान गए हुए हैं मरियम सफदर अमान के साथ, इसलिए ये घर से बाहर नहीं निकलते। एक आध वो C-44 के नुमाइंदे यहाँ हैं, वो खुद सवाल भी नहीं करते, खुद आते भी नहीं, इसलिए कि उनके दूसरे जब तक आले दुआले जिसको कहते हैं ना इर्द गिर्द आले दुआले के मियाँ बीमार शरीफ के मनपसंद साफी वहां मौजूद ना हो, उस वक्त तक दूसरे छोटे मोटे जो है वो चूहे भी अपनी बिलों में घुस जाते हैं, और जब ये सब आते हैं तो फिर ये बरसाती कीड़ों की तरह बरमार कर देते हैं, मर्जी के सवालात पूछने शुरू कर देते हैं। मियाँ बीमार शरीफ इस वक्त जो है वो एंजॉय कर रहे हैं सर्दी के मौसम को, और डरते मारे घर से बाहर नहीं निकलते। अब आगे की सूरत हाल क्या है? अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसको हम कहते होते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसका क्या काम चल रहा है? उसमें शाहिद खाकान अब्बासी अब खुलकर सामने आ गए हैं, और वो मरियम नवाज के नीचे काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। भाई नीचे ना करें, ऊपर तो कर ले, काम तो करें। मैं तो ये कहना चाहता हूं, इससे कोई आप दूसरा मतलब मत लीजिएगा, अगर आप नीचे काम नहीं करना चाहते तो ऊपर कर ले, इससे क्या फर्क पड़ता है? यानी आप उनसे बड़ा ओहदा ले लें, आप पहले भी वजीर आजम रहे हैं, तो लिहाजा ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन पार्टी में इंतशार यकीनी तौर पर पैदा हो चुका है। और इसके साथ साथ मुंशी मनक्का की जो इंतकामी कार्रवाइयां हैं वो भी अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। आज मैंने नया नाम दे दिया, मुंशी मनक्का। आज के बाद आपने अपने ट्विटर्स में, अपने तमाम सोशल मीडिया पे मुंशी मनक्का जो है, राजा सिकंदर सुल्तान जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका नाम मुंशी मनक्का है, और अगर मुंशी मनक्का की इतनी जुर्रत है तो वो लंदन में आकर FIR करवाए, हम उसको उसका बाकायदा तौर पर कानूनी जवाब देंगे। तो मुंशी मनक्का भी जो है वो इंतखाबात कराने के लिए तैयार नजर नहीं आता, और इमरान खान के अकेले का तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान सुनकर इनके होश उड़े हुए हैं, रातों की नींदें बर्बाद हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान की मैशत का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। और इसहाक डालर जो यहाँ जैली बीमार बनकर भी बेड पे बेगम कुलसूम नवाज के अस्पताल में लेट गया था, वो आजकल ऐसे मजे ले रहा है, ऐसे एंजॉय कर रहा है, और आवाम को मजाक बनाकर रख दिया गया है, क्योंकि इन्होंने, अब तो ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है कि अपने तमाम केसेस खत्म करवाने के लिए इन्होंने ये सारा खेल रचाया था। और इस बहती गंगा में वो मुजीबुर रहमान शामी साहब, वो जो बड़े अपने आप को फन्ने खां साफी समझते हैं, साफियों का वो अपना अबू बनने की कोशिश करते हैं, वो भी इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए सूबाई वजीर जो तालीम बन गए हैं। बड़ा बंदा पूछे, आप सहाफी हैं, आप भी वजीर तालीम बन गए हैं। वो अहमद मीर का छोटा भाई इमरान मीर, वो भी वजीर इत्तलात बन गया है। मुझे तो यूं लगता है कि चूं चूं का मुरब्बा, और उस मुरब्बे के ऊपर जो है वो मुजीबुर रहमान शामी को बिठा दिया गया है ताकि वो उंगलियों से मुरब्बा खाएं। और मुजीबुर रहमान शामी साहब के बारे में तो आमतौर पर यह कहा जाता है, मुबैना तौर पर ये बात तो मशहूर है, वो पेट्रोल पंप वाला मामला तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। और मुझे तो ये भी पता है कि मुजीबुर रहमान शामी साहब जब फैसल टाउन लाहौर में एक छोटे से मकान में रहते थे तो उस वक्त भी जो आए आन दो वाला मामला था। जैसा कि एक वाकया मशहूर है कि वो किसी मौलाना के घर में जो है वो मुर्गी पकी, तो उन्होंने पूछा ये मुर्गी कहाँ से आई है, तो उन्होंने कहा ये हमसायों की मुर्गी थी, हमारे घर आ गई तो हमने इसको पका लिया ज़िबा करके। तो मौलाना ने कहा ये तो हराम है। तो बेगम साहबा ने कहा, फिर उन्होंने कहा बस फिर मुझे ना देना सालन। लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, ये जो मसाला और घी वगैरह जो था ये कहाँ का था? उन्होंने कहा ये हमारे घर का था। उन्होंने कहा फिर ठीक है, शोरबा जो है ना वो मुझे डाल दो। जब वो शोरबा डालने लगी थी मुर्गी की, एक टांग भी उसमें आ गई। तो उन्होंने वो खातून खाना ने मौलाना के डर से, अपने मौलवी साहब हस्बैंड के डर से, वो जब पीछे हटाने की कोशिश की उसके साथ चम्मच के साथ, तो कहने लगे ये कोई बात नहीं, जो खुद आए उसको आने दो। तो मुजीबुर रहमान शामी साहब का भी ये हाल है कि वैसे हराम हराम करते रहना है, वैसे इस्लाम इस्लाम करते रहना है, लेकिन जब खुद आए तो हराम को हलाल आने दो, यानी आने दो और खाने दो। ये 4-5 लोग ऐसे हैं जो आने दो और खाने दो की पॉलिसी पर अमल करते हुए सहाफत करते हैं, और फिर अपने आप को सहाफत का बहुत बड़ा चैंपियन और ईमानदार, ज़ियाउल हक से लेकर आज तक इन सब ने खाया है। मुजीबुर रहमान शामी और इनके जो दूसरे साथी हैं, मैं नाम नहीं लेता, आप सबको पता है, बूढ़े हो गए सब, कई तो मर भी गए उनमें से,
इसी तरह हराम खाते खाते इन सब ने हराम खाया। इन्होंने कोई मौका नहीं जाने दिया कि बिल्कुल मेज के नीचे से पैसे पकड़ लिए हों और वो पता भी ना चला। पैसे नहीं लेते, कभी अखबार दे दिया तोहफे में, अकबर अली भट्टी साहब का रोजनामा पाकिस्तान जिसमें हम भी काम करते थे, वो इनको तोहफे में दे दिया नवाज शरीफ ने। और इस तरह के और बड़े मामलात हैं, वो सारे काम सारी बातें हैं। क्या हम तो कहते नहीं है, लोग कहते हैं, जमाना कहता है ये बातें, जमाना ये बातें कहता है। और दूसरी तरफ जो है वो मरियम सफदर अवान जहां जाती हैं कोई प्रोग्राम नहीं देती हैं, लोगों को मंशूर नहीं है, बस इमरान इमरान करती हैं, इमरान वे इमरान करती हैं। और वो कहते हैं ना कि तेरे प्यार की कहानी कहाँ से शुरू हुई, वो गाना है, मुझे तो गाने आते नहीं है इतने, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, लेकिन जिक्र करता हूँ कि तेरे प्यार की कहानी, वो तेरे प्यार तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, ऐसे है वो। आप खुद कमेंट्स में मुझे बता देंगे वो कौन सा गाना है। तो ये जब भी कुछ तकरीर करती हैं, और ऐसी तकरीर मैं तो ये पिछले 2-3 दिनों से जो क्लिप्स देख रहा हूँ, कमाल मजे के क्लिप्स हैं, बंदे हैं नहीं है और झूठ बोलती। कभी कहती मेरे गले की सर्जरी हुई है, कभी कहती मेरे घुटने की सर्जरी हुई है। असल में जो कह रही है ना कि मेरे गले की सर्जरी हुई है, वो चेहरे की सर्जरी हुई है। आप देखें वो चेहरा जो है ना, झुर्रियां खत्म हो गई हैं और वो जो है ना वो सर्जरी करवा कर, लेकिन इनको खुद भी नहीं पता कि 3 घंटे ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर ने कहा तुम बाल बची हो, यानी तुम्हारे चेहरे के बाल से तुम बची हो। और जो है ना वो कहते हैं कि तुम मैं प्रोग्राम करते करते मेरी हंसी निकल गई, माफ कीजिएगा, लेकिन वो बाल बचने वाला ऑपरेशन कौन सा था, इतना खतरनाक ऑपरेशन कि जिसकी पता ही नहीं चला किसी जर्नलिस्ट को। हम भी यहाँ लंदन में रहते, हमें पता नहीं चला बाल बचने वाला कौन सा ऑपरेशन था। बहरहाल बच्ची तो वो बच्ची है, मतलब आपको भी पता है बच्ची है, और बाल ही बची हुई है, लेकिन उनके साथ वालियां भी, हिना परवेज भी बाल बची हुई है, ये सारी बाल बची हैं। वरना फिर आपको तो पता है वीडियो मास्टर है और वीडियो बनाने में बड़ा कमाल यदे तूला रखती हैं, तो लिहाजा ये जो है झूठ का एक मशीन है, मशीन धड़ाधड़ झूठ निकल रहा है, धड़ाधड़ झूठ निकल रहा है। और अब तो इनके लिफाफे भी इनसे तंग आ गए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कुछ पैसे भी बंद किए हुए हैं, तो लिफाफे भी तंग आ गए। अहमद मीर, वो सना बुच्चा, अच्छा मुझे किसी ने कहा बुच्चा कौन होते हैं, ये बुच्चे की के लोग होते हैं, ये जड़ावाला के करीब एक इलाका है बुच्चे की, वहां के लोग हैं ये, इनको इसलिए बुच्चा कहते हैं। एक कॉस्ट है मतलब पंजाब में, तो सना बुच्चा मुझे तो लगता ही नहीं है कि जर्नलिस्ट है, मुझे तो लगता है किसी कोई मजार होता है ना, मजार, वहां को सूटा लगाते हैं ना, जो सूटा और दम मारो दम, वो उस तरह की को मुझे लगता है। पता नहीं हर वक्त वो इस चेहरे से उनके तासरात होते हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो कभी इनको मिला नहीं जिंदगी में। बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि कोई दम मारो दम वाली जर्नलिस्ट है। तो अब तो वो भी तंग आ गई हैं और वो भी जो है वो खुलकर जो है उस पर तनकीद करना शुरू हो गई हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने अवाम का जीना दूभर कर दिया है। बीबी के आते ही, मरियम सफदर अवान के आते ही 35 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाकर वो पैसे पूरे करने की कोशिश की जा रही है, जिससे सर्जरी हुई है और वो बाल बची हैं। अवाम भी बाल बच जाए तो अच्छी बात है, वरना अवाम का भी अल्लाह ही हाफिज है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।